اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے. 15 سے 2000 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہاں پہ حماس کے لوگوں کی. آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں. میرا اپنا دماغ ہے, میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا. جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے, اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس, ہمارا پورا ملک خاموش ہے. کہاں گئی ٹیکنیک؟ جب تک ایمان کا جذبہ نہیں آئے گا بھائی آپ جنگ نہیں جیت سکتے. اسی چیز کو دکھانے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. رات کا یہ وقت ہے اور یہ نوجوان بغیر کسی سیاسی, مذہبی یا کسی بھی تنظیم کے علاوہ یہ اپنے ان بھائیوں, مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان یہاں پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کے لیے. اسلام کا جو ہے نا اس کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں. اللہ یہ ٹیکنالوجی کس نے ڈالی ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اللہ نے ڈالی ہے. اچھا, اللہ نے دوسرے لوگوں کے ذہن میں سر ٹیکنالوجی ڈال دی ہے, نان مسلم کے مائنڈ میں. ہمارے اگر مسلمانوں کی بات کریں ہم اس طریقے سے, اللہ نے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ٹیکنالوجی ڈالی؟ الحمدللہ جو یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کے مجاہدین دب گئے ہیں, وہ کچھ نہیں کرتے, پوری دنیا کو بتا دیا ہے اور مسئلہ فلسطین کو ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے فلسطین کی آزادی کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا آپ نے اکانومی کی بات کی تو اس میں آج کل یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جنگیں اکانومی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, لیکن یہ فیکٹ والی بات بھی ہے نا. دیکھیں ایک سائڈ پہ نعرہ لگایا جائے, ایک سائڈ پہ جو ان سے خالی جذبے کی بات کی جائے, دوسرے سائڈ پہ پراپر ٹیکنالوجی ہو, پراپر میزائل ہو, تو پھر تھوڑا سا یہ چیز فیکٹ پہ تو آتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے, لیکن آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں بلکہ جذبے جو ہیں وہ کام آتے ہیں. وہ ان فلسطینی بچوں کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں طاقتوں سے بڑھ کے ہے. جی تو دوستو, میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نوجوان پاکستان میں فلسطین کا پرچم پکڑے بڑی تعداد میں روڈ پہ ریلیاں نکال رہے ہیں. لبیک لبیک الجہاد الجہاد کے نعرے لگ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے 30 بلین کے فوریکس ریزرو سیل کر دی ہیں تاکہ وہ لمبی جنگ کر سکیں, اور انہوں نے پراپر اعلان کیا ہے کہ حماس نے یہ جو چیز کا آغاز کیا, سٹارٹ کیا, اس کا اینڈ ہم کریں گے اور بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا حماس کو, فلسطین کو. پاکستانی پبلک سے بات کریں گے, یہاں پہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں ان سے بات کریں گے, کیا نعرہ لگانے سے کچھ ہوگا یا پھر جنگیں اکانومی سے لڑی جاتی ہیں آج کے دور میں خاص طور پہ اگر بات کریں. اور ابھی خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے غزہ میں دوبارہ سے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, آنے والے ٹائم میں کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی پبلک, پاکستان کی گورنمنٹ کی اس کے اوپر کیا اوپینین ہے, جانیں گے اس ویڈیو میں. اور میری جو اوپینین ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف, ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ساکم نذیر. آپ کا نام سر؟ عرفان. اور آپ کا نام؟ ذیشان صادق. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم کپڑے کے تاجر ہیں. تاجر ہیں. اچھا, ابھی اسرائیل کی اگر بات کریں, فلسطین کی بات کریں, حماس کی بات کریں, جنگ چل رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے پھر سے کنٹرول کر لیا ہے غزہ کے اوپر. کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو جنگ ہے کیا کون سا رخ اپنا رہی ہے؟ 1500-2000 کے قریب جو ہیں وہاں پہ حماس والوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی ہیں ادھر غزہ میں. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وقل جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان مشہودا. حق اللہ کی مہربانی سے فتح یاب ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا گرک کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حماس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور فتح یاب کرے گا. ٹھیک ہے, ادھر دو چیزیں ہیں. آپ نے بولا کہ بھائی حماس کو فتح یاب کرے گا, اسرائیل کا بیڑا گرک کرے گا. صرف دعا کر دینے سے یا اس طریقے سے کرنے سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی. بالکل جنگیں لڑی جاتی ہیں ٹیکنالوجی سے. آج کے دور پہ خاص طور پہ اگر بات کریں اکانومی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس ٹائم پہ 30 بلین کے فوریکس ریزرو جو اسرائیل نے سیل کیے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور یہ کیا فلسطین کی بات کریں یا حماس کی بات کریں, اتنی اکانومی ان کے پاس ہے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں, یا پھر جیسے سپر پاور امریکہ ساتھ دے رہی ہے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں غزوہ بدر کی آپ ہسٹری لے لیں, 313 صحابہ کرام تھے. آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں. میرا اپنا دماغ ہے, میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا. جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے, اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس, ہمارا پورا ملک خاموش ہے. کہاں گئی ٹیکنیک؟
जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती आपने है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा, मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है, और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं, और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट यार के साथ। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? ठीक है, क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी। और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूं, आपसे जो उनसे आपकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूं, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की। जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नज़र आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया आपने? तुर्की की बात की है। तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाज मरवा देता है। ठीक हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम साहब जी। एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, करते क्या हैं आप? मेरा कपड़े का ही काम है। ठीक है, ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा है और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो। अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अंदर खाते
कहते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक हो गया। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह नहीं तो खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के, जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया, आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो उनसे मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो उनसे उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई है, ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो उनसे उनके साथ मिल के आप जो उनसे जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या फिर क्या आप क्या गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पर नहीं? सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मतलब आगे किसी से बात करते हैं, क्या कहेंगे आपके? आज अगर ये जो नौजवान खड़े हैं या कहीं भी पाकिस्तान के नौजवानों को गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं है, हम लोगों को भेज सकते हैं, तो लोग जाएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, जाने देने के लिए? बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। इन शॉर्ट मैं ये बात करके बात ख़त्म करता हूँ कि आज भी हो इब्राहिम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा इंशाअल्लाह। जी, आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? उमैर नाम है मेरा। उमैर भाई, यहाँ बड़ी तादाद में आपके साथ नौजवान मौजूद हैं और सड़कों के ऊपर रैली निकाली जा रही है। इस रैली का सबसे पहले तो मकसद बताइएगा। जी, इस वक्त जो आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर, ये नौजवान आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में रात के इस पहर में, ये किसी कॉल के बगैर खुद अपने जज्बे के लिए, अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी के लिए कि हम यहाँ पर भी खड़े होकर इस हालात में भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं एक जिस्म के मानंद होते हैं। इस जज्बे के साथ वो यहाँ पर अपने उन भाइयों के साथ हमदर्दी कर लिए और ये नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए में खड़े हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है। हमें जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है और एक यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, इस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई,
ابھی ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہم جا رہے ہیں یا ساتھ ہیں, یا اس طریقے سے مطلب خالی منہ زبانی بیان آیا ہے. کیا کہتے ہیں, جنگیں تو لڑی جاتی ہیں اکانومی کے ساتھ, اکانومی مضبوط ہوگی, پیسے جیب میں ہوں گے تو جنگ لڑی جائے گی. خالی نعرہ لگا دینے سے, خالی یہ لبیک جہاد کہنے سے کیا یہ جنگ اس طریقے سے لڑی جاتی ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے حماس کے, اگر بات کریں اسرائیل کی بات کریں, کیا کہیں گے آپ کہ اکانومی ہماری آپ کے سامنے, کیا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے جو آپ نے اپنے گورنمنٹ کی بات کی, ہماری گورنمنٹ اس وقت جس حال میں بھی ہو, ہم نے یہ ریلی کا مین جو پرپز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ بھی کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسرا آپ نے اکانومی کی بات کی, تو اس میں آج کل یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جنگیں اکانومی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, لیکن یہ فیکٹ والی بات بھی ہے نا. دیکھیں ایک سائڈ پہ نعرہ لگایا جائے, ایک سائڈ پہ جو ان سے خالی جذبے کی بات کی جائے, دوسرے سائڈ پہ پراپر ٹیکنالوجی ہو, پراپر میزائل ہو, تو پھر تھوڑا سا یہ چیز فیکٹ پہ تو آتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے, لیکن آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں بلکہ جذبے جو ہیں وہ کام آتے ہیں. وہ ان فلسطینی بچوں کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ بھی ہمارے حتمی طاقتوں سے بڑھ کے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا کہیں گے یہ جو بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پہ موجود ہیں, اگر انہیں کہا جائے کہ آپ فلسطین جائیں, آپ جو ان سے برما جائیں, آپ یہاں پہ جا کے جو ان سا ہے کہ ان کا ساتھ دیں, تو کیا یہاں سے نوجوان جائیں گے کہ صرف نعرہ لگائیں گے؟ اسی چیز کو دکھانے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. رات کا یہ وقت ہے اور یہ نوجوان بغیر کسی سیاسی, مذہبی یا کسی بھی تنظیم کے علاوہ یہ اپنے ان بھائیوں, مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان یہاں پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کے لیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنے 30 بلین کے فوریکس ریزرو سیل کر دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. جو حماس نے یہ سٹارٹ کیا ہے, آغاز کیا ہے, اب اس کا انجام ہم کریں گے, اور یہ انہیں بڑی تعداد, بڑا مطلب یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آگے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے, امریکہ ہے, بڑی بڑی سپر پاورز ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جیسے حماس جیسا گروپ ہے یا فلسطین کے لوگ ہیں, کیا کہیں گے, یا ایران ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ایک امت جو تھی وہ امت آپ شرازہ ہو چکا ہے, امت کا بکھر چکی ہے, جس کی وجہ سے دشمن جو ہے ہماری آنکھیں دکھاتا ہے, اس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے. تو اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, تو یہ سارے دوبارہ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں, ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو وہی بات ہے, یہ نوجوان صرف اپنے اندر امت کا درد لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائی وہاں پہ کٹ رہے ہیں, تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. گورنمنٹ اگر اجازت دے گی تو ہم وہاں پر جانے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے, ان کے ساتھ ہم جانے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اقبال کی وہی فکر ہے کہ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کھا کے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ایک منٹ جی بھائی جان, یہاں پہ بڑی تعداد میں جو نوجوان موجود ہیں, کس وجہ سے موجود ہیں؟ الحمدللہ امت مسلمہ جب ایک پلیٹ فارم پر ہے, ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے ریلی نکالی جا رہی ہے, نوجوان پیدل بائکس پہ, اور فلسطین کا جو فلیگ ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیے لہرا رہے ہیں. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں, آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شہباز احمد. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ گارمنٹس کی شاپ ہے ہماری. شاپ ہے, آپ بزنس کرتے ہیں. اچھا ابھی اس ٹائم اسرائیل کی بات کریں, فلسطین کی بات کریں, حماس کی خاص طور پہ جنگ چل رہی ہے, اور اسرائیل کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے. 15 سے 2000 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہاں پہ حماس کے لوگوں کی. کیا کہنا چاہیں گے جو اس ٹائم سچویشن ہے پاکستان کی, اس ٹائم اس کے اوپر کیا پالیسی ہے, پاکستان کی پبلک کی کیا پالیسی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حماس کے مجاہدین کو, ٹھیک ہے, جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے. وہ ملک جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سیف مانتا تھا, اللہ کے فضل سے حماس کے
मुजाहिदीन ने उसका गुरूर जो है वो तोड़ दिया है। गरूर तब मेरे ख्याल से टूटता कि जब जंग में कामयाबी होती है। स्टार्ट किया, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी परेशानी वाली खबरें, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि बेवकूफ़ाना हरकत की है। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इवन अमेरिका तो उनके साथ बिल्कुल स्टैंड भी कर रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया भी स्टैंड कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्री की भी बात करें, तुर्की ने कोई सच जो सा वो मुस्लिम की हवाले से स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा दोनों तरफ जो है हम चाहते हैं सुलह हो जाए और ये चीज़ें हों। नहीं, जो वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी गलत पॉलिसी है कि उन्होंने जो हमला किया, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा उनका हौसला है। अच्छा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मार का मारा है। ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको चाहिए कि इनको बिल्कुल अप्रिशिएट करें और बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए, जिस तरह अमेरिका ने उनका साथ दिया है, दूसरे जो यूरोपियन मुल्क का साथ दे रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए और एक होकर हमास का बिल्कुल साथ देना चाहिए, और जितनी भी जो गज़ा पे वो बेशक कब्ज़ा भी कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये कब्ज़ा होने के बावजूद भी ना वो दिलों पे कब्ज़ा कर सकते हैं, ना वो फ़लस्तीन के लोगों पे कब्ज़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा, आज कल इंशाल्लाह हमास जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस भी इंशाल्लाह जो है वो आज़ाद होगा और इनको इबरतनाक शिकस्त होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। किस तरीके से साथ देना चाहिए? यानी कि जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर साथ दे रहे हैं, मैं वैसे एक सवाल कर रहा हूँ कि नारा लगा के ये चीज़ें, क्योंकि आज दुनिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, इकॉनमी पे चल रही है। तो जब खाली नारे के साथ या जज्बे के साथ सपोर्ट करना है, या टेक्नोलॉजी और इकॉनमी के साथ सपोर्ट करना, वो ज़्यादा मतलब दूसरी साइड पे टेक्नोलॉजी भी है, इकॉनमी भी है, दुनिया के कंट्रीज भी साथ खड़े हैं, और इस साइड पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जज्बा भी होना चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती तो हमास कभी भी हमला करने की ये कोशिश ना करता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जब हम मुसलमान ममालिक उनकी मदद करेंगे, ये सब कुछ जो हमारे पास है इसमें से 10% भी उनको प्रोवाइड कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा। तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या हमारे अदारों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, या 10% जो आपने बोला, 10% क्या 5% भी देने जा रहे हैं, या इस तरीके से साथ खड़े हैं? ना इसराइल को पहले कबूल किया है, ना अब करेंगे। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट, हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी मुल्क की, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी पहले भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे, ना हम झुकेंगे और ना किसी दूसरे ममालिक का कोई भी जो दबाव है कबूल करेंगे। ठीक है। लास्ट में ये बता दें, तुर्की ने भी इसराइल को एक्सेप्ट किया, आपको पता होगा। इसके अलावा यूएई की अगर बात करें, कतर की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में अगर दोबारा ये सिचुएशन बनती है तो फिर पाकिस्तान भी, यानी खबरें ये आती सऊदीया? बिल्कुल, ये खबरें पहले यही चल रही थी कि उन लोगों ने, तुर्की ने और कतर ने जैसे कि इसराइल को कबूल कर लिया है, तो सऊदी अरब जिस तरह के उनके आपस में तल्लुकात चल रहे थे कि बहुत जल्द वो भी कबूल कर लेगा। उसके अलावा सबको यही उम्मीद थी कि सऊदीया करेगा तो पाकिस्तान भी ये करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तब भी यही स्टेटमेंट दी थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी भी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। और नेक्स्ट टाइम भी मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस बात को कभी भी अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसराइल को कबूल करे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। ये जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम, सब लोग ये सुन रहे हैं, क्या समझते हैं इन सब के यही जज्बात हैं जो आपके जज्बात? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सबके यही जज्बात हैं पूरे। आप तो निकाली, बिल्कुल, ये जुम्मे के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकाली जा रही हैं और बहुत बड़े जो इज्तिमा हैं वो इस जुम्मे के रोज़ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमास के साथ, फ़लस्तीन की आवाम के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं।